Hello students, in the earlier classes we have discussed the concept of normal resident, and in today's class we will continue that discussion and we will discuss the concept of domestic territory. Both of these concepts are very necessary, very required, very important for the concept of domestic income and national income, because in examination both the concepts are asked frequently about the concepts of domestic income and the national income. The differentiation between the two should be clear in our mind, and the differentiation is based on the concept of normal resident concept and the domestic territory concept. Domestic income is related to domestic territory and national income is related to normal resident concept. So both the concepts are equally important. So today we will discuss the domestic territory concept. What is domestic territory? What is included in that and what is not included in that? So let's see domestic territory concept. Few points which are included in domestic territory. First one is our political frontiers, land or area inside the political frontiers. As you would have seen the map of India, that map is our boundary line. Any area inside that boundary line is our domestic territory. That boundary line is commonly known as political frontier. So any land, any area inside that political frontier is our domestic territory. And what is included in that? Including territorial waters. What is territorial waters? As you know, our India is covered with water from the three sides. India is a peninsula. So that sea, that ocean, when we measure distance in that sea, that ocean, it is measured in nautical miles. So 21 nautical miles usually is our territorial water. यूनिट्स आपको नहीं पूछ जाएंगी कि 21 नॉटिकल माइल्स होना ही चाहिए क्या, लेकिन ये टेरिटोरियल वाटर के अंदर भी कुछ डिस्टेंस जो है वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है. एक एग्जांपल से मैं आपको मान लीजिए कि ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट इंडिया नहीं है, आप जैसा कि आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये इंडिया है, तो इसके बाहर का जो ये हमारे टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है, इसे भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे हर साइड से. कितना 21 नॉटिकल माइल चलना. तो ये भी हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानना है, ठीक है. दिस टेरिटोरियल वाटर इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी. ओके, तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर. ओके, व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स operated by resident of the country. Important condition is operated by whom? Operated by resident of the country. Any ship or aircraft flying across the world, कहीं पे भी अगर वो उड़ रहा है, कहीं पे भी अगर वो है, ठीक है, if that ship, that aircraft is operated by Indian resident, then that ship, that aircraft would be treated as a part of a domestic territory. हमारी domestic territory बन जाएगा. चाहे वो जापान के ऊपर उड़ रहा हो, चाहे वो अमेरिका के ऊपर उड़ रहा हो, चाहे वो इंग्लैंड के ऊपर उड़ रहा हो, कहीं पे भी वो प्लेन हो, कहीं पे भी वो शिप हो, इफ दैट शिप, दैट प्लेन इज ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे इंडिया का रेसिडेंट अगर उसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एनी फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया. एयर इंडिया एक इंडियन कंपनी है, आपको पता है, ठीक है, तो उसका प्लेन कहीं पे भी उड़ रहा है, दैट प्लेन इज ऑफ एयर इंडिया, वो एयर इंडिया का प्लेन है, तो वो जापान के ऊपर उड़ रहा है, यूएस के ऊपर उड़ रहा है, किसी के ऊपर भी उड़ रहा है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा वो प्लेन, फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम. ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन जो है या वो हवा जो है वो हमारी हो गई, इंडिया की हो गई,
ऐसे की बात नहीं कर रही। लेकिन अगर उस प्लेन में अगर ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होता है, कुछ इनकम अगर जनरेट होती है, तो उसे हम हमारी नेशनल इनकम के अंदर कंसिडर कर सकते हैं या करेंगे। चलिए, सिमिलरली एनी फिशिंग वेसल एंड ऑयल एंड गैस rig, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ऑपरेटेड बाय whom होना चाहिए, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। एनी फिशिंग वेसल एंड ऑयल एंड गैस rig ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट, कोई भी फिशिंग वेसल है, ठीक है, कोई भी ऑयल एंड गैस rig है, अगर उसे इंडिया का रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है तो वो फिशिंग वेसल, वो ऑयल एंड गैस rig भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान लिया जाएगा, ठीक है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान लिया जाएगा। मतलब ऑयल एंड गैस rig क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, जो सी से, जो ओशन से हम क्रूड निकालते हैं, क्रूड एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो इस मशीन के थ्रू किया जाता है, ऑयल एंड गैस rig। तो अगर ऐसा कोई ऑयल एंड गैस rig है, वो इंटरनेशनल वाटर में भी अगर है, ठीक है, ऐसा कोई फिशिंग वेसल है, वो इंटरनेशनल वाटर में है, मान लीजिए हमारे टेरिटरी से बाहर निकल गया, हमारे टेरिटोरियल वाटर से भी बाहर निकल गया, इंटरनेशनल वाटर में वो फिशिंग कर रहा है, फिश निकाल रहा है, वहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई हमारी जो ये पार्ट है ये नेशनल इनकम के अंदर मत लो, ठीक है। हमने बोला कि अगर इसे इंडिया का रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो हम इसे नेशनल इनकम के अंदर कंसिडर करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑपरेटेड बाय हूम, तो दोनों के अंदर ही हमने ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट देखा है। अगर नॉर्मल रेसिडेंट हमारी कंट्री का अगर ऐसे ऑपरेट कर रहा है, तो दैट फिशिंग वेसल, दैट ऑयल एंड गैस rig वुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, ये याद रखिएगा। चलिए, लास्ट है हमारा एम्बेसीज, ठीक है, कॉन्सुलेट्स भी एम्बेसीज जैसा ही होता है, एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कि मतलब हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो किसी दूसरी कंट्री में गई है, वहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है, कुछ प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ वॉर टेक्निक्स वो सीख रहे हैं, कोई प्लेन चलाना वो सीख रहे हैं, फाइटर प्लेन जैसी सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ऐसा कोई मिलिट्री बेस, मिलिट्री कैंप अगर कहीं है, ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहाँ पे एक अपना छोटा सा कैंप लगा रखा है, ठीक है, तो ये सब जो है एम्बेसीज है, मतलब इंडिया की एम्बेसी अगर कहीं किसी दूसरी कंट्री के अंदर है, तो वो एम्बेसी, वो दैट फॉरेन एम्बेसी, दैट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो वहाँ पे अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर्ड किया जाएगा, बोला जाएगा कि आपने डोमेस्टिक टेरिटरी में ट्रांजैक्शन किया है। देखिए, मान लीजिए इंडियन एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो ज़मीन हमने खरीद ली है, ठीक है, उसकी ओनरशिप हमारी हो गई है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम, for the purpose of calculation of national income, estimation of national income, that land is would be treated as a part of our domestic territory। हम ये मानेंगे कि इंडिया के अंदर ही वो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, ऐसा हम मानेंगे। है वो किसी और कंट्री के अंदर, ठीक है, वो हमारी एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना हुआ है ऑफिस उसका, लेकिन फिर भी हम क्या मानेंगे, क्योंकि वो कैसा है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, हमने स्पेशली उसे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो है, ये स्पेशल पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, यानी कि उस बाउंड्री लाइन के अंदर वाली लाइन, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। सेकंड है हमारा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, कंडीशन है ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, एनीवेयर फ्लाइंग अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, कहीं पे भी उड़ रहा हो हम उसे अपनी टेरिटरी मान लेंगे। थर्ड है फिशिंग वेसल और ऑयल एंड गैस rig, इंटरनेशनल वाटर में भी अगर है तो भी हम उसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान लेंगे। और लास्ट है हमारा फॉरेन एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, अगर ये फॉरेन एम्बेसीज है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, दूसरी कंट्री में भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे फिर भी हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान लेंगे। तो ये 4 चीज़ें जो हैं, 4 जो पॉइंट्स जो हैं, वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज 4 पॉइंट्स while considering the domestic territory, and it is important to know the domestic territory as for the calculation of domestic income. Okay, that's all for today.
we will discuss the next topics in the next class. Thank you.